Hello, Assalamu alaikum. My name is Bilal Khan and I'm student of BBA Honors in 8th semester. Today my topic of presentation is define finance and finance management. My presentation consists on 3 points. What is management, define finance and finance management. So firstly we know about what is management. Everything in the work done as a proper management. Management is a process controlling, handling, processing and decision making the financial resources, human resources and physical resources to achieve the goal of an organization by effective and efficiently manners. The second point is define finance. Finance is the study of money and how it is used. Finance is a basic of business. It is required to purchase assets, goods, raw materials and for the other flow of economic activities. Business finance can be defined as the provision of money at the time when it is needed to buy a business. The third step of my presentation is define finance management. Finance management is defined as the how we control, handle, organize, raising, investing and distribution of the funds or money in the organization. Raising in that there are some important areas in the finance management. The first point is raising of funds. Raising of funds is defined as the roadmap of how we use of money in the business, because इसमें हम कंपैरिजन करते हैं कि इनकम इन हैंड कितनी है और हमारे एक्सपेंस कितने हैं. यहाँ पर दो कंडीशंस हम फेस कर सकते हैं. वन कंडीशन इज द फर्स्ट कंडीशन इज एनी एंटिटी whose income exceeds its expenditure can lend or invest the excess of income to help that excess income produce more income in the future. कि हमें एक कंडीशन ये फेस कर सकते हैं कि हमारी जो इनकम है वो हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा जनरेट हो रही हो और हम जो हमें इनकम रिटेन्ड अर्निंग जो बच रही हो हम उसे आगे इन्वेस्ट कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें इन द फ्यूचर. और सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है एन एंटिटी whose income is less than its expenditure can raise capital by borrowing equity claims, decreasing its expenses and increasing its income. कि एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारी इनकम जो है वो हमारे एक्सपेंस से कम जनरेट हो रही हो और हमें इसके लिए फिर कुछ बोरिंग करना पड़े और कुछ अपनी जो इन्वेंट्री है वो सेल करनी पड़े और अपने एक्सपेंस डिक्रीज़ करने पड़े और हमें इनकम बढ़ाने के लिए कुछ और ये चीज़ें अपनानी होंगी. सम डिसीजंस ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स कि हमें रेजिंग ऑफ फंड्स के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि रेजिंग ऑफ फंड्स हमें कहाँ कहाँ करने हैं. व्हेन टू रेज टाइम कि हमें ये हमें डिफ़ाइन करना होता है कि किस टाइम कितना फंड्स हमने किस टाइम रेज़ करना है और किसके लिए करना है. हाउ मच क्वांटिटी फंड्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और इसकी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए. कि डेप्ट लेना है कि आपकी इक्विटी है, ऑनर्स इक्विटी है या कि आपने डेप्ट लेना है. The second important point of finance management is investment of funds. Investment of funds is the step financing management in which funds raised need to be allocated invested. आपको इसमें investment of fund is directly depend on a raising of funds because जो कि आपने funds raise किए होंगे उसी की बेस पर ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है. इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स में दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट. फिक्स्ड एसेट आल्सो नाउन एज कैपिटल एसेट बिकॉज फिक्स्ड एसेट आप जानते हैं कि फिक्स्ड एसेट डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारी इनकम को.
इसलिए इन्हें कैपिटल एसेट्स और इसी डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। फिक्स्ड एसेट इज़ आल्सो नाउन एज कैपिटल एसेट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन, क्योंकि अगर हम अपने फिक्स्ड एसेट पर इन्वेस्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली हमारी इनकम पे भी इफ़ेक्ट करेगा। सेकंड कंपोनेंट ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स इज investment of funds is current asset. Current asset is also known as working capital management। कि ये हमारे रोज़मर्रा के जो हमारे एक्सपेंस हैं इसमें वो शामिल होते हैं। पैटी कैश वाउचर्स एक्सपेंस ये ग्रेट एग्जांपल है करंट एसेट्स की। इसीलिए करंट एसेट इज आल्सो नाउन एज कैपिटल मैनेजमेंट। दीज आर एसेट्स फॉर डे टू डे upon cost and return analysis through various business day-to-day running the business like cash, receivables, inventory, short form of investment, etc. The third important area of financial management is distribution of funds। डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स इसमें हमारे शामिल होते हैं जो शेयर होल्डर्स को जो हमने फंड्स रिलीज़ करने होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने शेयर्स मार्केट में सेल किए होते हैं और जिनको सेल किए होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स, और उनको जो हमने शेयर्स के रेट्स दिए होते हैं कि हमें आपको हर मंथ या ईयरली आपको इतना डिविडेंड्स पे करेंगे। जो डिविडेंड्स जो हम पे करते हैं वो हमारे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स में आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड इज डिफाइंड एज द प्रॉफिट अर्नड टू बी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जितनी ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर्स जितने बेचेगी उसको उतने ही अपने डिविडेंड्स को भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स भी पे करना पड़ेगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स में आ जाता है। And now my presentation is complete. Thank you so much.